pressing the recording. A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Leal Public School, and students, today we all are going to continue our chapter number 9 of your history textbook. The name of the chapter is The Making of the National Movement, or you can say the rise of nationalism in India. So our today's topic is freedom is our birthright. Freedom is our birthright. So this is one of the important, or one of the most famous slogan, by okay, who will tell me who gave this slogan, freedom is our birthright? Who will tell me? ये तो बचपन से आप सुनते आ रहे हो, I think. Freedom is our birthright. Anybody? वैसे फ्रीडम इज माई बर्थराइट था, बट यहाँ पे फ्रीडम इज आवर बर्थराइट दे रखा है. यस, बताइए किसने दिया था? हु इज दिस पर्सन? यस राहुल. मैम बाल गंगाधर तिलक. Yes, very good. Bal Gangadhar Tilak. So Bal Gangadhar Tilak gave this slogan, freedom is our birthright. So basically in this under this topic we will talk about extremist, or you can say we will talk about the radical phase of the Congress. Till now we talked about the moderate phase of Congress, and under that Congress or moderators wanted to fulfill some of the demands from the Britishers. They didn't want any position, but yes, they didn't want Britishers to move out from India, but they wanted Britishers to fulfill some of their demands. But now in radical or the extremists, or you can say the radical phase of the Congress, they want first of all understand the meaning of radical. Radical means when someone or when a person when a person put efforts or wanting great social or political change, or you can say revolutionary के लिए term use किया जाता है जब कोई भी political और social change, बहुत बड़ा political और social change कोई लाने की कोशिश करता है तो उस person को हम radical बोलते हैं. So by the 1890s, many Indians began to raise questions about the political style of the Congress. In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai, जिन्हें हम लाल, पाल और बाल के नाम से भी जानते हैं, were beginning to explore more radical objectives and methods. They criticized the moderates of their politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. They argued that people must rely on their own growth, not the good intentions of the government. People must fight for Swaraj. Swaraj is a Sanskrit term which means self-rule. Tilak raised the slogan, freedom is my birthright and I shall have it. So 1890s के पीरियड में क्या हुआ था, बहुत सारे इंडियंस जो हैं, अब जो भी कांग्रेस का स्टाइल था, पॉलिटिकल स्टाइल था, जो पॉलिटिकल स्टाइल था उसके अगेंस्ट में क्वेश्चनिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. दे स्टार्टेड रेजिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, एंड स्पेशली बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे. वहां पे बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ने रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स को एक्सप्लोर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. रेडिकल का मतलब क्या होता है? एक जब कोई भी पॉलिटिकली और सोशली बहुत बड़ा चेंज लाने को हम रेडिकल बोलते हैं, ठीक है. तो अब उन्होंने बहुत सारे जो रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स हैं उनको एक्सप्लोर करना उन्होंने स्टार्ट किया. दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग मॉडरेटर्स, ठीक है. मॉडरेट्स जो थे उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमें गवर्नमेंट के गुड इंटेंशंस को नहीं देखना है,
या फिर हमें अपनी खाली डिमांड्स फुलफिल नहीं करवानी है, ये हमारी कंट्री है एंड वी वांट आवर ओन रूल, ठीक है। लोगों को खुद के रूल के लिए, खुद की फ्रीडम के लिए जो है, अब खुद की स्ट्रेंथ के लिए जो खुद की स्ट्रेंथ पे रिलाय करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट हमारे भले के लिए ऐसा कर रही है, इस पे हमें रिलाय करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, सेल्फ रूल के लिए लोगों को अब जो है एक फाइट करनी चाहिए। सो ही रेज्ड द स्लोगन फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेके रहूंगा। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस slogan for wanting independence. So in 1905 Viceroy Curzon partitioned Bengal. Now splitting of Bengal, partition of Bengal 1905 में बंगाल का partition हुआ था। Lord Curzon announced the partition of Bengal, and at that time Bengal was the biggest province in India. प्रोविंस, बिगेस्ट यूनिट था, बिगेस्ट एक टेरिटरी था, इंपॉर्टेंट सिटी, इंपॉर्टेंट एक एरिया था इंडिया में। सो एंड जो प्रेजेंट है बंगाल, बिहार और कुछ पार्ट्स हैं उड़ीसा के, वो उस टाइम पे बंगाल प्रोविंसेस के क्या थे, पार्ट्स थे। ओके, सो एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। The British argued for dividing Bengal for reasons of administrative convenience. But what did administrative convenience mean? Whose convenience did it represent? Clearly, it was closely tied to the interests of British officials and businessmen. Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politicians and to split the Bengali people. So finally, actually, अक्टूबर 1905 की ये बात होगी जब जो बंगाल का पार्टीशन जो है वो फाइनलाइज हुआ था, एंड बंगाल प्रोविंसेस, बंगाल वाज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। बंगाल प्रॉपर जो प्रेजेंट डे आपका बिहार और प्रेजेंट डे बिहार, उड़ीसा का के भी कुछ पार्ट्स जो थे उस टाइम के प्रॉपर बंगाल के पार्ट्स थे। तो बंगाल को ईस्टर्न बंगाल और ईस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ईस्टर्न बंगाल एंड असम में। एंड बंगाल जो है वो वहां पे बहुत सारे जो न्यू प्रोविंसेस थे आपके, उन्होंने कहा था कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए कि हम कन्वीनियंटली काम कर पाए, इसलिए हम बंगाल का क्या कर रहे हैं, डिविजन कर रहे हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज whose convenience did it represent? किसकी कन्वीनियंस के लिए, किसके कन्वीनियंस का मतलब कि किसके सेफ्टी, ये उसके लिए इजीनेस के लिए ये जो है बंगाल का आप स्प्लिट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली इसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स और बिजनेसमैन का मोटिव दिख रहा था। सो इन्होंने नॉन बंगाली एरियाज के अलावा भी जो बंगाल को है, ईस्टर्न बंगाल और सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट विद असम। ईस्ट बंगाल और असम को 2 पार्ट्स में बंगाल को डिवाइड किया और ईस्ट बंगाल के पार्ट को असम के पार्ट के साथ मर्ज कर दिया था। The partition of Bengal infuriated people all over India. All sections of the Congress, the moderates and the radicals, as they may be called, opposed it. Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protests developed. The struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement, strongest in Bengal but with echoes elsewhere too. In Deltic Andhra, for instance, it was known as Vande Mataram movement. So obviously from people from all over the India, they were like very angry with this partition of Bengal, and even moderates and radicals, both the sections opposed it. They criticized this partition of Bengal, and बहुत लार्ज पब्लिक मीटिंग्स जो है वो हेल्प की गई थी, डेमोन्स्ट्रेशंस हेल्प किए गए थे, प्रोटेस्ट किए गए थे,
एंड ये जो स्ट्रगल था इसको स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना गया था, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के नाम से जाना गया था। एंड all sections of people joined the congress in the swadeshi movement, even students too took active part in holding demonstrations against the british। and even जो हम वंदे मातरम सॉन्ग जो सुनते हैं, हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, the song Vande Mataram became the national song of the Swadeshi movement। वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो स्वदेशी मूवमेंट का जो है एक नेशनल सॉन्ग जो है वो बना। एंड इवन इन डेल्टिक आंध्रा में जो है ये वाला जो मूवमेंट है वो वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जाना गया। एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, एक प्रोटेस्ट के टाइम पे, एक दिन प्रोटेस्ट के टाइम पे क्या हुआ था, जितनी भी शॉप्स वगैरह थी सब बंद थी। एंड उस चीज को रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था रक्षाबंधन डे। उन्होंने कहा था जितनी भी कम्युनिटीज हैं उन्होंने आपस में राखी टाई की थी एक दूसरे को, और उस राखी को टाई करके वो यूनिटी को और सॉलिडेरिटी को जो है वो एक्सप्रेस कर रहे थे। ठीक है, सो नाउ जस्ट लुक एट दिस फिगर 3, बाल गंगाधर तिलक। नोटिस द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर that lies on the table. Kesari, a Marathi newspaper edited by Tilak, became one of the strongest critiques of British rule. Kesari editor थे बाल गंगाधर तिलक, केसरी न्यूज़पेपर के मराठी न्यूज़पेपर था, और one of the this newspaper, केसरी न्यूज़पेपर, became one of the strongest critiques of British rule. And yes, the main aim of the Swadeshi movement जो क्या था, the main aim of the Swadeshi movement and boycott movement was to oppose both the British rule and the British manufactured products। स्वदेशी मूवमेंट का एक जो इम्पोर्टेंट जो है ये एम भी था कि ब्रिटिश मेड गुड्स जो हैं, ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं और ब्रिटिश रूल जो है, इन दोनों को ही क्या करना, अपोज करना। Now just look at this figure, thousands joined the demonstration during the Swadeshi movement। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बहुत सारे हजारों लोगों ने जो है इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। The Swadeshi movement sought to oppose British rule and encourage the ideas of self-help, Swadeshi enterprise, national education and use of Indian languages। To fight for Swaraj, the radicals advocated mass mobilization and boycott the British institutions and goods। Some individuals also began to suggest that revolutionary violence, what is revolutionary violence? The use of violence to make a radical change within society। कि violence का use करना सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। ठीक है, कोई भी एक बड़ा चेंज लाने के लिए जब हम वायलेंस का यूज करते हैं तो उसे हम रेवोल्यूशनरी वायलेंस कहते हैं। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने सजेस्ट किया कि हमें जो है रेवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल। अगर इंडिया से हमें ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना है, हटाना है, तो हमें रेवोल्यूशनरी वायलेंस करना होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला गया था, जो स्वदेशी मूवमेंट था, उन्होंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका मेन एम था कि ब्रिटिश रूल को अपोज करना और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को भी अपोज करना। जितने भी उन्होंने गुड्स बनाए हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स ही हैं, वो सब बॉयकॉट करना और ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करना। और रेडिकल्स ने बहुत सारे लोगों को जो है सपोर्ट किया था और जो स्वराज के लिए क्या कर रहे थे, जो फाइट कर रहे थे। एंड उन्होंने बोला था कि अब हमें स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ही जो है एंटरप्राइजेस ओपन करनी चाहिए और स्वदेशी प्रोडक्ट्स का ही हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। हमें कम्युनिकेशन के लिए हमें अपनी खुद की इंडियन लैंग्वेजेस का जो है यूज करना चाहिए। The opening decades of the 20th century were marked by other developments as well. A group of Muslim landlords and Nawabs formed the All India Muslim League at Dhaka in 1906. The league supported the partition of Bengal. It desired separate electorates for Muslims, a demand considered by the government in 1909. Some seats in the councils were now reserved for Muslims who would be elected by Muslim voters. This tempted politicians to gather a following by distributing favors to their own religious groups. अब देखिए
अब 19 जो ये 20th सेंचुरी जैसे ही स्टार्ट हुई थी ना, तो ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट्स एज वेल। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिले थे। अब ग्रुप जो मुस्लिम ग्रुप्स थे, नवाब्स और लैंडलॉर्ड्स का जो ग्रुप था, उन्होंने एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ढाका में ओपन की, उन्होंने फॉर्म की। और ये जो लीग था वो बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट भी करता था। इवन वो चाहते थे कि बंगाल के लिए जो है मुस्लिम्स के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए। और गवर्नमेंट ने इनकी जो ये डिमांड है 1909 में क्या कर थी, मान ली थी इन्होंने। दे consider it, and जो councils में councils, what is council? An appointed or elected body by of people with an administrative, advisory or representative function। एक ऐसी इलेक्ट बॉडी, और जहाँ पे जो इलेक्टेड बॉडी, जहाँ पे लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या चूज करते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव पर्सपेक्टिव से जो है लोग उस ग्रुप को चूज करते हैं, और उसको हम काउंसिल बोलते हैं। तो कुछ सीट्स जो काउंसिल्स में थी वो मुस्लिम्स के लिए क्या हो चुकी थी, रिजर्व हो चुकी थी, और वो मुस्लिम इलेक्टर्स ही, मुस्लिम वोटर्स ही उनको क्या कर सकते थे, इलेक्ट कर सकते थे। और इससे बहुत सारे दिस टेम्पटेड पॉलिटिशियंस टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स। अब इससे बहुत सारे जो अलग रिलीजियस ग्रुप्स थे वो चाहते थे कि हमें भी जो है एक फेवर मिलना चाहिए अलग सा। So meanwhile, the Congress split in 1907. The moderates were opposed to the use of boycott. They felt that it involved the use of force. After the split, the Congress came to be dominated by the moderates, with Tilak's followers functioning from outside. The two groups reunited in December 1915. Next year, the Congress and the Muslim League signed the historic Lucknow Pact and decided to work together for representative government in the country. So 19 हमने अभी तक बात की कि 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी, वो बनी थी। उसके बाद अब देखिए अब जो आपका कांग्रेस है, कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था 1907 में। 1907 में कांग्रेस जो थी वो स्प्लिट हुई। अब एक साइड थे मॉडरेटर्स, ठीक है, वो जो बॉयकॉट प्रोडक्ट्स को, इंस्टीट्यूट्स को बॉयकॉट करने की बात थी उसको वो अपोज करते थे, और उनको लगता था इसमें बहुत ज्यादा फोर्स और बहुत ज्यादा वायलेंस का यूज होगा, इसलिए वो इस चीज को क्या कर रहे थे, इसके ऑपोजिट में बोल रहे थे, इसके अगेंस्ट में थे। और तभी जो कांग्रेस है वो स्प्लिट हो चुकी थी। एंड जो तिलक, बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, वो उनके साथ वो बाहर से जो है इनके साथ मॉडरेटर्स के साथ काम भी कर रहे थे। फाइनली दिसंबर 1950 में क्या हुआ था, दिसंबर 1950 में फिर से वो रीयूनाइट हुए, वो यूनाइट हुए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या किया था, एक पैक्ट साइन किया था। ठीक है, एक पैक्ट साइन किया था, उस पैक्ट का नाम था लखनऊ पैक्ट। और अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट उन्होंने डिसाइड किया था कि हम अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए साथ में अब क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। A nationalist from Punjab, Lala Lajpat Rai, he was one of the leading members of the radical group, which was critical of the politics of partitions. He was also an active member of the Arya Samaj. ठीक है, अब पंजाब से थे, रेडिकल ग्रुप के एक वन ऑफ द लीडिंग मेंबर रहे हैं वो, और पॉलिटिक्स की जो पेटिशंस थे, जो डिमांड वाली, मॉडरेटर्स की जो डिमांड वाली पॉलिसी थी वो उसके अगेंस्ट में थे, उसके क्रिटिक में थे। एंड ही वाज आल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आर्य समाज। आर्य समाज के भी एक्टिव मेंबर रहे हैं। नाउ हु विल टेल मी हु फॉर्म्ड द आर्य समाज? आर्य समाज किसने फॉर्म किया है? हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा है, हु फॉर्म्ड आर्य समाज? यस पवन, प्लीज अनम्यूट योर डिवाइस। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग।
Ma'am, the answer is Swami Dayanand Saraswati. Yes, very good. Swami Dayanand Saraswati was the founder of the Arya Samaj, and yes, he was the founder of the Arya Samaj, and उन्होंने विडो रीमैरिज और गर्ल एजुकेशन के लिए काफी फोकस भी किया है, काफी उन्होंने स्टेप्स भी लिए हैं, और उनके अकॉर्डिंग वुमेन का जो स्टेटस है वो मेन के स्टेटस के जितना ही होना चाहिए, इक्वालिटी को उन्होंने जो है वो स्प्रेड किया था. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ग्रोथ ऑफ मास nationalism. The growth of mass nationalism. So after 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement. Mass, बहुत सारी जो पॉपुलेशन होती है ना, ठीक है, बहुत सारी जो पॉपुलेशन होती है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है मास, ठीक है, बहुत सारे लोग. So British rule gradually became a mass movement involving peasants, tribals, students and women in large numbers, and occasionally factory workers as well. Certain business groups too began to actively support the Congress in the 1920s. And why was this so? So we will talk about some of the movements now. और आपने गांधी जी जो है 1915 में ही केम बैक टू इंडिया, और उसके बाद आपके काफी 3 जो है इंपॉर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट चले थे, और 1919 में जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हुआ था. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. सो बिफोर दैट जस्ट लुक एट दिस पैराग्राफ. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑल्टर्ड. नाउ हु विल टेल मी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था? कब? एनीबडी? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, किसी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में? चलो ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, ओके योगेंद्र, यस, अनम्यूट योर डिवाइस. यस मैम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 19 to 1918. 19 फर्स्ट, कौन सा ईयर बोला? 1914 to 1918. 1914 to 1918 तक चला था, ठीक है. आपके सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स थी इसमें. इन योर फर्दर क्लासेस यू विल नो मोर अबाउट वर्ल्ड वॉर एंड दीज पावर्स, एलाइड ग्रुप्स एंड एक्सेस ग्रुप्स, एलाइड ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला, और उसके बाद जो भी बहुत इंडिया के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन थी ना, वो काफी डिफरेंट हो चुकी थी. इट लेड टू अ ह्यूज rise in the defense expenditure of the government of India. Obviously at that time Britishers was the government of India. Britishers क्या थे? Government of India. Britishers ही तो थे. अब Britishers के Britishers जो थे एक मेन पावर, मेन आपके जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका मेन पार्ट थी ब्रिटिश. तो ब्रिटिशर्स को जो सोल्जर्स मिले थे वो कहाँ से मिले थे? वो इंडिया से ही उन्होंने लिए थे. इंडियन सोल्जर्स ने भी पार्टिसिपेट किया. इंडियन सोल्जर्स ने भी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो पार्टिसिपेंट थे. और जो ब्रिटिशर्स के लिए वो जो थे वो उस वॉर में उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, वॉर किया था. और जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, अब वेपन्स वगैरह की भी जरूरत थी. अब आर्मी के शूज हो गए, वेपन्स हो गए, आपकी ड्रेसेस वगैरह हो गए, और खाने पीने के लिए भी. तो डिफेंस एक्सपेंडिचर में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो काफी ज्यादा था. द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स. अब गवर्नमेंट ने ये जो पैसा था, जो एक्सपेंडिचर था, उसे करने के लिए अपना वो उन्होंने पैसे के लिए क्या किया, जो टैक्सेस थे वो इंक्रीज कर दिए थे, ठीक है. अब इंडिविजुअल के इनकम्स हो गए, बिजनेस के प्रॉफिट्स हो गए, उसमें जितना भी टैक्स वगैरह लगता था वो टैक्स रेट्स जो है गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी थी. इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज led to a sharp rise in prices which created great difficulties for the common people. And obviously उस टाइम पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर इतना हो रहा था और वॉर सप्लाईज के लिए जो डिमांड्स थी, इससे कॉमन पीपल, सपोज आप वॉर
की सिचुएशन में आप सोल्जर्स को खाना पीना सब जो लग रहा था, जो ग्रेन्स वगैरह की जरूरत थी, उसकी डिमांड फुलफिल की जा रही थी। तो जो कॉमन पीपल थे उनके लिए ग्रेन्स वगैरह कम रहते थे और जो आपके टैक्सेस वगैरह भी काफी इंक्रीज हो चुका था। तो प्राइसेस जो है बहुत शार्प होने लग गई थी, बहुत ज्यादा राइज होने लग गई थी। एंड ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रीप्ड फैबुलस प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। अब बिजनेस ग्रुप्स को जो है बहुत अच्छा जो है यू कैन से कि प्रॉफिट हो रहा था वॉर की वजह से। एज यू हैव सीन द वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जूट बैग्स हो गए, क्लोथ हो गए, रेल्स हो गए, शूज हो गए, वेपन्स हो गए। तो अब इंडस्ट्रीज जो बिजनेस ग्रुप्स थे उनको प्रॉफिट्स भी अच्छा हो रहा था क्योंकि इनकी डिमांड्स जो थी वो क्या हो रही थी, राइज हो रही थी। एंड कॉज्ड अ डिक्लाइन ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। अब उस टाइम पे ही हमें देखने को मिलता है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, जो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखते हो ना, आज के टाइम पे जो नाम सुन रहे हो, वो इसी टाइम पे डेवलप्ड हुई थी क्योंकि आयरन की, स्टील की काफी डिमांड आ चुकी थी। अब इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वॉर के टाइम पे काफी एक्सपेंड हुई थी। बिजनेस ग्रुप्स भी जो है उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपका टाटा इंडस्ट्रीज का है। द वॉर आल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी। Villages were pressurized to supply soldiers for an alien cause. alien term जो है ब्रिटिशर्स के लिए यूज किया गया है। इंडियन जो विलेजर्स से बहुत सारे सोल्जर्स की जो सप्लाई हो रही थी, तो इसमें इंडियन सोल्जर्स थे, वो किसके लिए वो आर्मी किसके लिए ज्वाइन कर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए ज्वाइन कर रहे थे। ब्रिटिशर्स का कोई पर्पस था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कॉजेस थे और किस लिए वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो इंडियन विलेजर्स थे, अब आर्मी का पार्ट बन रहे थे। A large number of soldiers were sent to serve abroad, obviously अब बाहर जाके यूरोप की कंट्री, यूरोप, जर्मनी, स्पेशली जर्मनी में जाके उन्होंने जो है जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज में जाके उन्होंने क्या किया था, वॉर किया था। Many returned after the war with an understanding of the ways in which imperialist powers were exploiting the peoples of Asia and Africa and with the desire to oppose colonial rule in India। अब बहुत सारे लोग वापस आ भी पाए और बहुत सारे लोग वापस नहीं भी आ पाए। अब जो imperialist थे, अब now there is a term, new term for you, that is imperialist। कौन होते हैं imperialist? कोई बताएगा मुझे? What is imperialism? Okay, nobody. Okay, imperialism क्या होता है? Imperialism is a political system in which a rich and powerful country controls other countries। जैसे बहुत सारी फ्रेंच कंट्रीज, जो बहुत सारी आपकी ब्रिटिशर्स हो गए, फ्रेंच हो गए, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है दूसरे लैंड में जाके अपनी कॉलोनीज को स्टैब्लिश कर रहे थे। ठीक है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थे, बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, पर वो दूसरे कंट्री में जाके क्या कर रहे थे, उनपे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, सब्जुगेट कर रहे थे। तो उनको हम बोलते हैं इंपीरियलिज्म। सो जब बहुत सारे सोल्जर्स वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं, जो ये यूरोपियन कंट्रीज, जो ये कॉलोनियल कंट्रीज हैं, ये एशिया और अफ्रीका के लोगों को बहुत ज्यादा क्या कर रही हैं, एक्सप्लॉइट कर रही हैं। और उन्होंने, उनका जो रिटर्न था, उनकी डिजायर, मन में क्या इच्छा थी कि जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिशर्स का रूल है इंडिया में, उसे हमें क्या करना है, अपोज करना है। Furthermore, in 1917 there was a revolution in Russia. Russian Revolution भी हुआ था। Again, in class 9 you will get to know more about Russian Revolution. You have the whole chapter related to this. So 1917 में जो revolution हुआ था, एक Russian Revolution हुआ था। News about peasants and workers' struggles and ideas of socialism circulated widely, inspiring Indian nationalists।
जो ये सोशलिज्म के आइडियाज जो थे, कम्युनलिज्म के आइडियाज जो थे, वो अब इंडियन नेशनलिस्ट, रशियन रेवोल्यूशन की वजह से जो है सोशलिस्ट आइडियाज आए थे, जहां पे कोई रिच और पुअर नहीं होता है, सब बराबर होते हैं, और जो मेन लैंड्स है, मेन पावर है, वो गवर्नमेंट के पास आती है, और गवर्नमेंट के पास रहती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, सबको एम्प्लॉयमेंट, और जो ग्रेन्स वगैरह हैं, फूड वगैरह है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट। तो जो सोशलिज्म के आइडियाज थे, वो भी जो है रशिया से इंडियन नेशनलिस्ट के जो है, इंडियन नेशनलिस्ट को इंस्पायर कर रही थी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास. So in our next class, we will talk about, we will start with this topic, the advent of Mahatma Gandhi. That's all for today. Thank you.